Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Storyland and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. I hope all of you are fine and doing well. Thank you very much for your support. I'm your teacher Omer Muhammad and today we are going to solve the workbook exercise of chapter number 6, Variety Entertainment from New Oxford Modern English Book 4, and it is the third edition of this book. इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं. एंड इफ यू हैव एनी कमेंट, क्वेरी और सजेशन रिलेटेड टू माय कंटेंट एंड माय नीश, यू कैन फ्री टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो. और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो मेक श्योर कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें. वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करते हैं. अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. The name of this chapter is Variety Entertainment and first section of exercise is section A, Mr. Wasim and Mr. Nasim, present tense. Question number 1 है, read about Mr. Wasim and discuss the timetable. This is Mr. Wasim's timetable. Mr. Wasim का timetable हमें given है 6 o'clock जागने का वक्त, 6:15 6:15 बजे runs round the park, पार्क का चक्कर लगाते हैं, 7:30 takes a cold shower, 7:30 बजे ठंडे पानी से नहाते हैं, 8 o'clock eats breakfast, 8 बजे नाश्ता, 8:20 walks to work, काम की तरफ पैदल चल पड़ते हैं, 8:45 starts work, काम का आगाज़ करते हैं, 1 o'clock begins lunch, और 1 बजे दिन का खाना शुरू करते हैं, 4 o'clock drinks tea, 4 बजे चाय का वक्त, 5:15 stops work, 5:15 बजे काम ख़त्म, 5:30 प्लेस टेनिस, और 5:30 बजे टेनिस खेलते हैं. इसको जब हम पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे तो एवरी डे मिस्टर वसीम वेक्स अप एट 6 o'clock, he runs round the park at 6:15, he takes a cold shower at 7:30, at 8 o'clock he eats his breakfast and then walks to work, he starts work at 8:45, his lunch hour begins at 1 o'clock, usually at 4 o'clock he drinks tea, then at 5:15 he stops work, he plays tennis at 5:30. Question number 2 given है. Answer the questions. हमें कुछ questions given है. 4 questions है. A. When does Mr. Wasim wake up? B. How long does Mr. Wasim take to walk to work? C. What time does Mr. Wasim drink his tea? And D. When does Mr. Wasim play tennis? इन सभी questions को हमने इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है. The answer of question A is Mr. Wasim wakes up at 6 o'clock. B. Mr. Wasim takes 25 minutes to walk to work. C. Mr. Wasim drinks his tea at 4 o'clock. And D. Mr. Wasim plays tennis at 5:30. The next question is question number 3. Now look at Mr. Nasim's timetable and ask your own questions. This is Mr. Nasim's timetable. यहाँ पे Mr. Nasim का timetable given है और हमने उसी तरह से questions बनाने हैं. 9 a.m. wakes up, 9:15 a.m. runs to catch bus, 9:30 arrives at work, 9:45 eats breakfast, 12 p.m. stops work, 12:30 p.m. goes to the cafeteria for lunch, 1:30 p.m. returns to work, 3 p.m. drinks tea, 3:30 p.m. goes home, 4 p.m. watches TV. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, राइट अ सिमिलर पैराग्राफ अबाउट मिस्टर नसीम. मिस्टर नसीम के बारे में भी आपने मिस्टर वसीम की तरह ही पैराग्राफ लिखना है. पहले हम क्वेश्चंस बना लेते हैं टाइम टेबल को देखते हुए. पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डज मिस्टर नसीम वेक अप? बी. हाउ लॉन्ग डज मिस्टर नसीम टेक टू गो टू वर्क? सी. व्हाट टाइम डज मिस्टर नसीम ड्रिंक हिज टी? एंड डी. व्हेन डज मिस्टर नसीम वॉचेस टीवी? जब हम मिस्टर नसीम के टाइम टेबल को पैराग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा. एवरी डे मिस्टर नसीम वेक्स अप एट 9 o'clock, he runs to catch the bus at 9:15, at 9:30 he arrives at work, at 9:45 he eats his breakfast, Mr. Nasim stops work at 12 o'clock midday, he goes to the cafeteria for lunch at 12:30, at 1:30 he returns to work, he usually drinks tea at 3 o'clock, at 3:30 he goes home, by 4 o'clock he is watching TV. The next section is section B, present tenses. You have learned that there are 3 tenses. आपने सीखा है कि 3 tenses होते हैं, the present, the past and the future tense. Present यानी हाल, माजी को past बोलते हैं, and future is मुस्तकबिल यानी आने वाला वक्त.
The present tenses tell us about the present time or today. Present tense हमें बताता है अभी इस ज़माने की बात, ज़माना हाल की बात, यानी आज के बारे में जो बात हो रही है या अभी हो रही है. Two very important tenses in the present tense are present continuous tense and simple present tense. और इसको हम सब डिवीजन भी करते हैं टेंसेस की. जो प्रेजेंट टेंस के अंदर जो टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंसेस हैं वो हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट. फॉर एग्जांपल, इट इज़ लुकिंग लिटिल क्रम्पल्ड, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, क्योंकि इसमें आई एन जी यूज़ हो रहा है और हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम होता है, इसकी ये पहचान है. सेकेंड है इट लुक्स क्रम्पल्ड एवरी डे, सिंपल प्रेजेंट. अभी क्योंकि रोज़ की बात हो रही है, एवरी डे की बात हो रही है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, राइट सेंटेंसेज इन द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस एंड द प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस. नोटिस दैट द सेंटेंसेज आर ऑल इन पास्ट टेंस, द एक्शंस आर ओवर. यहाँ पे जो हमें 4 सेंटेंसेज गिवन हैं ये पास्ट टेंस में दिए गए हैं और उनको हमने कन्वर्ट करना है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में और सिंपल प्रेजेंट टेंस में. फर्स्ट हमें एग्जाम्पल गिवन है, सलमान पेड द मैन सम मनी, ये पास्ट टेंस में है. सलमान इज पेइंग द मैन सम मनी, it is present continuous tense. and third is Salman pays the man some money. यहाँ पे हम फर्स्ट जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ हम एस या ई एस ऐड करते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये एक निशानी है. और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम और वर्ब के साथ हम आई एन जी ऐड करते हैं. यहाँ पर हमें ए बी सी डी 4 सेंटेंसेज गिवन है और इनको हमने, ये सभी पास्ट टेंस में है और इनको हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में और सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है. A sentence है I went to school yesterday. B I ate my lunch quickly. C my mother cooked the dinner. and D I did my work carefully. जब हम फर्स्ट सेंटेंस को चेंज करेंगे तो I am going to school now, ये कॉन्टीन्यूस है. नेक्स्ट I go to school every day, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. I am eating my lunch quickly, ये कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है. I eat my lunch quickly, ये है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस. C my mother is cooking the dinner now, आई एन जी यूज़ हो रहा है और इज़ यूज़ हो रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है. माई मदर कुक्स डिनर एवरी डे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. एंड डी है आई एम डूइंग माई वर्क केयरफुली, इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस. एंड आई डू माई वर्क केयरफुली, इट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन सी, prepositions. व्हेन prepositions टेल अस वेयर और व्हेन थिंग्स हैपन. preposition से हमें ये पता चलता है कि चीज़ें या कोई भी वाक़या कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है. और वेयर दे आर गोइंग, या कोई अगर जा रहा है तो वो कहाँ जा रहा है. अंडर, ऑन, वेयर, आफ्टर, अंटिल, व्हेन, इनटू, लॉन्ग, वेयर दे आर गोइंग एट्सेट्रा. यानी जब इनको किसी भी चीज़ के बारे में यूज़ किया जाता है तो हमें उसकी पोजीशन के बारे में बताते हैं. एग्जांपल है, सायरा रोज इंग्लिश शी वाज 5 years old. सायरा कुड राइट इंग्लिश व्हेन शी वाज 5 years old. The next question is question number 1. Remove the full stops and join the sentences using when. हमें यहाँ पे कुछ sentences given है, इनको हमने join करना है. full stop को हमने remove कर देना है. form of verb को भी according to the sentence उसको हमने change करना है जब हम उसमें when apply करेंगे. तो चलिए अपना start करते हैं इसको convert करना. लेकिन उससे पहले हम sentences को एक दफ़ा read कर लेते हैं. A, Imran dived, he was 6 years old. B, Nadia swam, she was 5 years old. C, Mariam used a computer, she was 5 years old. D, Fahad rode a horse, he was 7 years old. E, Emma read English books, she was 6 years old. F, Dan played hockey and football, he was 9 years old. G, Dada drove a car, he was 18 years old. एंड एच, दादी स्पोक अरेबिक, शी वाज 16 years old. यहाँ पे जब हम फर्स्ट सेंटेंस को चेंज करेंगे और व्हेन अप्लाई करेंगे तो इमरान कुड डाइव व्हेन ही वाज 6 years old. यहाँ पे हमने फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज की. सेकंड थी डाइव्ड, तो हमने इसको फर्स्ट लिख दिया. डाइव एंड कुड का इसमें एडिशन किया एंड दोनों जो सेंटेंसेस थे उनके दरमियान से हमने फुल स्टॉप को रिमूव करके व्हेन अप्लाई कर दिया. सभी सेंटेंसेस में सेम रूल को ही हम फॉलो करेंगे. बी है, नादिया कुड स्विम व्हेन शी वाज 5 years old. सी, मरियम कुड यूज़ अ कंप्यूटर व्हेन शी वाज 5 years old. D, Fahad could ride a horse when he was 7 years old. E, Emma could read English books when she was 6 years old. F, Dan could play hockey and football when he was 9 years old. And G, Dada could drive a car when he was 18 years old. And last sentence is H, Dadi could speak Arabic when she was 16 years old. The next section of exercise is section D. If. Question number 1 is answer the questions given on the next page using the clues given in the box.
हमें नेक्स्ट यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है और उसमें एक सीन क्रिएट किया गया है। इसको देखते हुए हमने नेक्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन है उनको आंसर करना है और क्लू हमें बॉक्स में गिवन है, इसको यूज़ करते हुए आंसर करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल हैपन इफ़ द बॉय ड्रॉप्स द स्टोन। इफ़ द बॉय डैश द डॉग डैश और क्लू हमें गिवन है वेक अप। बी क्वेश्चन है, व्हाट विल द डॉग डू इफ़ इट वेक्स अप। फर्स्ट सेंटेंस में इफ़ द डैश, सेकेंड में इट डैश एंड क्लू है हमारे पास चेज। एंड सी है हमारे पास, वेयर विल द कैट गो इफ़ द डॉग चेजेस इट। इफ़ द डैश द कैट डैश और यहाँ पे जो क्लू गिवन है दैट इज़ क्लाइम द ट्री। डी है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ़ द कैट क्लाइम्स द ट्री। इसका फर्स्ट आंसर होगा इफ़ डैश, सेकेंड इज़ द मदर बर्ड डैश और क्लू है फ्लाई अवे। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ई, व्हाट विल हैपन इफ़ द मदर बर्ड फ्लाइज अवे। इसका आंसर है इफ़ डैश और सेकंड इसका जो है वो है द बेबीज़ डैश एंड क्लू है हमारे पास नो डिनर। जब हम गिवन क्लूज़ की हेल्प से इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, इफ़ द बॉय ड्रॉप्स द स्टोन द डॉग विल वेक अप। बी, इफ़ द डॉग वेक्स अप इट विल चेज द कैट। सी, इफ़ द डॉग चेजेस इट द कैट विल क्लाइम द ट्री। डी, इफ़ द कैट क्लाइम्स द ट्री the mother bird will fly away. And E, if the mother bird flies away the babies will have no dinner. यहाँ पर जिन सेंटेंसेस में हमने इफ़ का वर्ड यूज़ किया है उसमें हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड किया है, लेकिन जहाँ पर विल यूज़ हुआ है उसमें हमने फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया है क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। दिस वॉज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।